Good morning. Good morning, Your Holiness. Today, गुड I'm मॉर्निंग। privileged on behalf of the Conference Organizing Committee तो आज to ऑर्गेनाइजिंग welcome कमेटी की तरफ से His मैं Holiness the 14th आपका Dalai Lama, our keynote यहाँ पर speakers, स्वागत who has करती हूँ compassionately accepted our invitation to grace this online event और to give an आप inaugural address followed इस by a Q&A session. It is क्वेश्चन also my प्रश्नोत्तर pleasure सत्र to भी now होंगे। welcome तो our opening आपको remarks guest speakers, इसमें the मैं Most जो Venerable है Bhikshu Jing Yao, भिक्षु Chairman of the जिंग यो, Buddhist चेयरमैन Association जो of बुद्धिस्ट the एसोसिएशन Republic of ऑफ China. रिपब्लिक चाइना, उनका Our स्वागत next करती हूँ। speaker would तो be the अगले Most वक्ता Venerable भिक्षु Mapukule मुखुकुले Vimala विमला महानायक थेरो, Nakaye द Thero, चीफ, the Chief Prelate of Sri Lanka, और जो Ramana श्रमण महानायक Mahathir थेरो of Sri श्रीलंका Lanka, से हैं। and also और the Most Venerable फिर उसके बाद भिक्षु बैंड Dhammapriya, Secretary धम्मप्रिया, General of the जनरल International Buddhist सेक्रेटरी जो इंटरनेशनल Confederation बुद्धिस्ट of India. कॉन्फेडरेशन है, And उनका of भी course, स्वागत to all करती our हूँ। distinguished guests, venerables, and participants और who are इसके with अलावा us हमारे today. जो भी साथी This जो Sanskrit and Pali अतिथिगण, उन सभी का इसमें International Buddhist स्वागत है। Conference is initiated by Tibetan Buddhist और ये Center, जो Singapore, कॉन्फ्रेंस under है, the guidance of and advice of Mr. Tempa Tserin, तो Professor जो तेम्बा Geshe सेरिंग जी के Nawang द्वारा Sampen, और and गेशे गांव Geshe Doje सेंतेन के Dambil, गेशे and दोजी is दामिल, jointly और organized by उसके 12 अलावा 12 international अन्य prestige Buddhist संस्थान हैं जो organizations across Asia जो विश्व के Pacific अलग and अलग Russia, ऑर्गेनाइजेशन हैं, namely उनके Ostap संयुक्त Buddha प्रयास से यहाँ Vihara, पर किया जा Singapore, रहा है। Theravada Buddhist Council of Malaysia, Vajrayana Buddhist Council of Malaysia, Buddha Dasa Indapano Archive Foundation, Thailand, International Network of Engaged Buddhism, Thailand, Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood Society, Buddhist Society of Western Australia, Buddhist Union of Kamkya, Russia, and also Department of Buddhist Study, Dhamma Institute of Liberal Arts, तो Taiwan, इसमें जो है ऑक्सफोर्ड and बुद्धा Department बिहार of सिंगापुर, Religion and थेरवाद Culture, बुद्धिस्ट Cheng Kung काउंसिल University, मलेशिया, Taiwan, बेजरा बुद्धिस्ट काउंसिल, Seta बुद्ध धम्मा, Rajasa Buddhist College, इंटरनेशनल Indonesia, नेटवर्क इंग्लैंड and इंगेज last but बुद्धिज्म not least, आईनेवी, Lamso श्रीलंकन Serap in टिबेटन Korea. बुद्धिस्ट ब्रदर As सोसाइटी, everybody बुद्धिस्ट is सोसाइटी ऑफ aware, वेस्टर्न, Buddhism is a religion that और has been लपसोंग practiced सेंट्रल worldwide लिंक for कोरिया। what we have believed by at least तो 500 सभी million लोग people. जानते हैं The कि basic Buddhist philosophy is interdependence and is और practice क्योंकि उसका of non-violence and जो compassion. सिद्धांत है वो प्रति Conviction समुत्पात और over अहिंसा anything है। is also often referred as a science mind तो इसमें भी and is खास करके जो adaptable to the हमारा जो cultural practice वैज्ञानिक of the चित्त है spirit वो world. किस प्रकार से Broadly हो, speaking, Buddhists can be categorized और अगर और बढ़त रूप से into those सीखा who जाए follow the करा जाए Pali तो tradition इस and बौद्ध those धर्म who को दो ascribe भागों to में the बांटा जा Sanskrit सकता है, tradition. पाली और संस्कृत Down परंपरा। the ages, और they have उसके been अलावा affirmed समय by के the अनुसार Buddhist देखें teachers, कि बहुत scholars, सारे and leaders टीचर्स of the Pali विद्वानों Sanskrit द्वारा tradition पाली और to संस्कृत के convene, जो discuss, and टीचर्स conduct हुए, international विद्वान लोग Buddhist हुए हैं, उनके बीच में organization to जो appreciate and to डिस्कशन हुए हैं, rationalize वार्तालाप हुए differences हैं, in practice और of उसमें various खासकर Buddhist जो अंतर community जो भी in देखे this गए world. हैं तो उनके अपने The अपने अभ्यास current के era आधार of पर हैं। internet तो आज के communication and समय में vast देखें, जो connectivity इंटरनेट की brings a इस unique दुनिया में देखें, opportunity तो for आज एक easier अवसर access to है a जो संघ virtual हैं Sangha उनको साथ community साथ and an online लाया जा सके, discussion. साथ साथ And रखा जा because of this सके। virtual और इस connectivity, इंटरनेट के over माध्यम the से next 2 days, तो पिछले अगले including 2 दिन today, तक we will आज से hear from लेकर more के than 38 तो यहाँ speakers 38 and वक्ता discussants from हैं जो 14 कि countries 14 देशों on से the हैं, topic of और त्रिशिक्षा Trishiksha and या Trishisha on the three trainings on the शिक्षा या contents अर्थात of the त्रिशिक्षा पर Pitaka बातचीत करेंगे जो Tripitaka. कि त्रिपिटक In का today's आधार inaugural है। sessions, followed by our 4 technical sessions तो आज and जो a है हमारे valedictory जो session. Today's टेक्निकल inaugural सेक्शन भी session will होगा, be moderated by और Venerable आज के Mahayano, मॉडरेटर जो है one of वेनरल our महायानो organizing हैं committee जो members हमारे from ऑर्गेनाइजिंग कमेटी Thailand. के मेंबर हैं जो थाईलैंड से हैं। The technical session और 1 on टेक्निकल Team Shila जो Shikha, जो the एक है inaugural वो session, शील के exclusively बारे में Buddhistic, होगा, will be जो chaired कि by Venerable भिक्षु Abbot में जो मन Geshe बिहारों में Tashitsering कैसे from हों, Sarame और इनके Monastery चेयरमैन University जो of एबोट India. गेसिटा सिछेरिंग सेरा There में will be a मोनेस्ट्री द्वारा किया concurrent जाएगा। technical session on the और theme of उसके जो करंट Tishikha and Trishisha, और theory and जो practice of त्रिशिक्षा Pali है उसके audience, chaired by डॉक्टर Dr. धम्मा Daminda Pillai पोरेज from Sri Lanka. श्रीलंका के द्वारा इसका वो किया जाएगा, Tomorrow, चेयरमैन we के have 2 रहेंगे। technical sessions. तो Technical आज session 2 on the theme of Samadhi Shikha. तो आज That दो will be chaired सेशन by होंगे, Venerable समाधि Dhamma और शिक्षा, Dhammapala from और जो Malaysia. धम्मपाला And मलेशिया के द्वारा tomorrow चेयर किया afternoon, जाएगा। technical और session कल 3 is on Prana जो Shikha. दोपहर में It है will be chaired by वो Professor प्रज्ञा Asanga दो प्रोफेसर Tilakaratne from असंगा Sri रत्न Lanka. श्रीलंका के द्वारा Last but होंगे। not least, a और valedictory अंतिम में session जो that will be वैलिडिटी chaired by समापन Professor समारोह Geshe जो Nawang प्रोफेसर Sampen, गेसे Vice गांव Chancellor, सामते Central जो कि Institute of सेंट्रल Higher इंस्टीट्यूट ऑफ Tibetan हायर टिबेटन Studies, सारनाथ के Varanasi, कुलपति India. हैं, उनके द्वारा की We जाएगा। hope that तो this हम rich dialogue of मानते हैं this कि nature ये will be जो beneficial in वार्तालाप fostering होगा तो deeper उसमें inner बौद्ध Buddhism धर्म के गहराई को understanding समझने के and लिए greater
लाभदायक होगा harmony among the और holders of और different जितने भी religion जो and हमारे faith. मान्यताएं हैं, Thus, धार्मिक मान्यता, contributing उनके to बीच the एक effort सद्भाव made by His बनेगा। Holiness the और Dalai Lama परम and पावन जी के various द्वारा जो एक great प्रयास किया जा global रहा है, leaders over the और past decades. तो जो पिछले कई दशकों With से this किया जा रहा है उस inspiration पे वो in mind, we are motivated to continue to strengthen the model of building trust, progress, and success in the Buddhist intra-faith relation, and thereby और sharing इसके this द्वारा wisdom साधुवाद with the संभाव भी wider बनेगा, ऐसा interfaith मैं world. मानती हूँ। And without further ado, तो I बिना will now hand देरी over किए अभी to जो our moderator जो for हमारे today, मॉडरेटर हैं Venerable Mahayano, आजकल to start the महायानो, session. उनको Thank you, मैं Your देती हूँ Holiness. तो वो अपनी बात रखें। Good morning, Your Holiness, distinguished, most venerables, तो distinguished guests. तो आज The यहाँ inaugural पधारे हुए session shall begin with three opening परम पावन दलाई remarks लामा जो from उसके three साथ अलग remarkable अलग, Sangha leaders from both तो आज traditions. 3 And भिक्षु after लोगों the के three द्वारा opening किया जाएगा। remarks, I would तो like 3 to humbly invite His Holiness the Dalai लोगों Lama के अपने to give the inaugural वार्ता के बाद speech, परम पावन which जी will be अपनी followed बात by a रखेंगे। Q&A sessions with the audience. And this would conclude our inaugural session this morning. So firstly, I would like to introduce our first opening remarks speaker, Most Venerable Bhikshu Jinyao. तो पहले जो Most है Venerable is the president of the Buddhist Association of the Republic of China तो जो कि and रिपब्लिक ऑफ president चाइना of के Taiwan Conference प्रेसिडेंट on हैं, Religion and रिपब्लिक Peace. और जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन Venerable ऑफ had उनके worked प्रेसिडेंट extensively हैं, on humanitarian issues, और तो disaster जो कि relief बहुत programs, मानवता के कार्यों पर काम improving the करते आए lives हैं, of people in और जहाँ prison, पर and जो have आपदाएं received हुई over उसमें भी 30 उनकी बहुत awards सहयोग since रहा है। 1993. और So 30 may I सालों invite से Most Venerable वो Bhikshu 30 से Jinyao ज़्यादा to give the वो opening अवार्ड remarks. उनको मिल चुके। 1993 से कार्य कर रहा है। मैं वेनरेबल भिक्षु जिनयो को बुलाना चाहूँगा।台湾 We invite Most Venerable Bhikshu Jinyao to please give the opening remarks. Thank you.台湾 की अंतर्गत From Taiwan, 无限拿的那种。松懈松有的了解，台湾节的虽然个节的亚个节松懈就上么的推给他们处理了。哦，阿弥陀佛， तो हमें 大家吉祥。 तो मैं आल 我 विस 是台 ऑस्पिशियस 湾 और मैं जिन 中 यहाँ 国佛教会的理事长 जो मैं 净耀法 जिन 师。 जो प्रेसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट 首先 एसोसिएशन 感 से 恩 और रिपब्लिक ऑफ 新 चाइना 加 से हूँ। 坡 तो 藏 सबसे 传佛 पहले 教中心的邀请， मैं आप लोगों को 让 बहुत 我有 बहुत 机会 धन्यवाद देना 参 चाहता 加 हूँ। टिबेटन बुद्धिस्ट सेंटर 这 सिंगापुर को 场佛 धन्यवाद देना 教 चाहता 三 हूँ 藏三世 कि 的 मुझे 学习 आज अवसर 研讨 प्रदान 会。 किया है। 虽 और इस 然因为疫情 जो 影响 3 而 शिक्षाओं 改 पर 为 जो 线 कॉन्फ्रेंस 上 हो रहा है 举 उसमें अवसर 行， प्रदान किया, उसके लिए 但 बहुत 是我 धन्यवाद। 依然十分 और 珍 हम 惜 जो है समय 这个 समय पर 因缘 ऑनलाइन 的长 ऑनलाइन 存 ऐसे 在。 कार्यक्रम कर रहे हैं 首先 क्योंकि आज जो 要 वैश्विक 对主办 महामारी 单 है 位 तो इस वजह 邀 से 请的 ये 嘉 हमको 宾 करने पड़ रहे हैं। 达赖喇嘛尊者、斯里兰卡僧王 तो सबसे पहले मैं परम पावन दलाई लामा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका 印 स्वागत 度国 करता 际 हूँ। 佛教联合 और 会 उसके 理事 अलावा 长 भिक्षु 达 मुकुल 玛 वे 雅 विमला 长老 माँ नायक थेरो श्रीलंका से हैं। 与会的所 और 有 इसके 嘉 अलावा 宾们 जो भी स्कॉलर्स भिक्षु 问候大 आज 家 यहाँ 不见 जो 面 जुड़ रहे हैं 吉祥。 उन सभी 对于今 का 天 स्वागत करता हूँ 要讨论的主 और मैं 题 सभी के 从佛 भलाई 教 के लिए 法 प्रार्थनाएं करता हूँ 和梵文传统中的三邪， क्योंकि जो हमारी जो 我 3 觉 शिक्षाओं के 得 ऊपर ट्रेनिंग हो 佛陀 रही 讲 है 这个三 या 邪的意 कॉन्फ्रेंस 思 है उस 就是 उपलक्ष्य में 希 सभी 望 का 能 यहाँ 够帮 स्वागत। 助所有的众生， तो जब 因为人有两个基本的大问题， जब इस अंतर शिक्षा की अगर बात 生命 करते 的 हैं 过程 तो 当 सबसे 中 बात पहले यही 会 उठती है कि 遇 आखिर 到 भगवान बुद्ध ने 身 इसको 心 क्यों 以及 कहा 社 होगा। 会、自然 और 环境等等的 और 问题 इसका यही अर्थ है 而 कि 感 जितने 到 भी 不 जीवधारी 快 हैं 乐。 उन सबको इससे 不 लाभ 同的 मिले 人 और 有 उनके जो 不 दुख हैं 同 उनसे 的 उनको मुक्ति मिले और 程 अंत 度 में 感 जाकर 受， के जो 天 परम 上 सुख 的 अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो। 受的苦 तो 难 एक 就是 मनुष्य होने के नाते 福报小的 तो हम लोग बहुत 受 सारी 的苦 समस्याओं 难 से 多， घिरे होते हैं। 不论是福报 और जब 好 हम 少， अभी जीवित हैं, जब हम रह 任 रहे 何 हैं 一个人 और तो उस 到 समय हम 最 बहुत 后 सारे 都 शारीरिक 无法避 और 免的 मानसिक 会 परेशानियों 失 से 去 गुजर 生 रहे 命。 होते हैं। 那 इसके 发心 अलावा 道 भी 理 हमारे 就 बहुत 是 सारी 帮 समस्याएं 助 होती 人 हैं, ये हमारी 解 अपनी 脱 कर्मों की वजह से 这 है। 两大问题的方 और 法， हम अलग अलग तरीके से जो 一 सुख और 是 दुख 如 उसकी 何 व्याख्या करते 度 हैं। 过种种的困难， तो ये 而 नहीं है कि 不 हमारी 致 कितनी 到 हमारे कितने भी पुण्य 第 संचय 二 क्यों 呢， न हों, 是面临 फिर भी 死 हम लोग 亡的 छोटी 时 मोटी 候 समस्याओं 不 का 会 सामना 恐 तो करना ही पड़ता है। 不会害怕，也不会感到 और 烦恼， ये
और आखिर जब मृत्यु को प्राप्त हों उस समय क्या होगा। तो ये जो दूसरी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, दुख है। इन समस्याओं को, एक जो बड़ी समस्या, उनको हम नित्य रूप से या निश्चित रूप से हटा सकते हैं, और उसके लिए भगवान बुद्ध ने हमें 8 अष्टांगिक मार्ग हैं वो दिए हैं, अभ्यास करने के लिए दिए हैं। और इनका अभ्यास करने से जो हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, और हम इनका अभ्यास करके जो विश्व की जो हमारे सांसारिक परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ हमें भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और 12 जो प्रतिसमुद्पाद के कड़ियाँ हैं, निदान हैं, तो वो भी हमें दिए हैं, जिसको आप भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र उपदेश के दौरान ये हमें उपदेश दिए थे। तो उनका यही उद्देश्य था कि जो जीवधारी हैं वो दुख से कैसे मुक्त हों, उनके दुख से कैसे नष्ट हों, और मार्ग पर चल कर के इन दुखों को हम नष्ट कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा है। और परम शांति को, सुख को प्राप्त करने के लिए जिसको निर्वाण कहा जाता है, उसे हमें प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर हम जो कि बुद्धहुड को प्राप्त करना, बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई जो शिक्षाएं हैं उनका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आखिर हम इनका अभ्यास कैसे करें? तो हमें इन मार्गों पर क्रम से चलना चाहिए। जैसे कि 8 जो हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं, 4 आर्य सत्य हैं, इनका क्रम से अभ्यास करें। और जैसा कि हम जानते हैं, और जो 8 जो अष्टांगिक मार्ग है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, गहरा है। और इसमें साथ साथ इसमें जो हमारे 3 शिक्षाएं हैं, 4 आर्य सत्य, और बिना हम जो 4 आर्य सत्यों को समझे सच्चाई को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें 4 आर्य सत्यों को समझना होगा, अष्टांग मार्ग को समझना होगा। और हालांकि जो हमारे एक आर्य मार्ग हैं, जो सच्चे मार्ग हैं, अगर हम जो अष्टांगिक मार्गों का अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम जो है निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमारे अंदर जो निर्वाण रूपी प्रज्ञा वो उत्पन्न होगी। इसलिए हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। और बिना अष्टांगिक मार्गों को प्राप्त अध्ययन किए जो इसके कारण क्या है, दुख के कारण क्या हैं, इनको भी नहीं समझ सकते हैं। इनको कैसे नष्ट किया जाए उसको भी नहीं समझ सकते हैं। और उसको समझने के लिए जो हमारे प्रतिसमुद्पाद की 12 कड़ियाँ हैं, इनको भी समझना चाहिए। जैसा कि हम लोग इस भावचक्र में पड़े हुए हैं और उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो मार्ग है, उस जो सच्चा मार्ग है, जो बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग है, उस पर हमें चलने की आवश्यकता है। तो कि जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख का कारण और दुख का जो निवारण का मार्ग, निरोध सत्य आदि जो हमारे जो 4 आर्य सत्य हैं, उनको पालन करके ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर हम वास्तव में एक मुक्ति पाते हैं, निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिसमुद्पाद का अभ्यास करना होगा। और इसके अलावा जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उनको अभ्यास न करें ऐसा संभव नहीं है। इनका तो हमें करना ही होगा। तो इसके लिए इसके साथ साथ अष्टांगिक मार्ग और प्रतिसमुद्पाद, इन दोनों को हमें साथ साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो
जो कार्ड है कि आखिर हम इस संसार में क्यों पड़े हैं, वो क्योंकि हम अज्ञान हैं, हमारी अज्ञानता की वजह से इसमें हम पड़े हैं। तो आप इनकी देखें कि जो प्रतिसमुत्पाद है उसमें जो जो अज्ञानता है, अविद्या है, वो पहले नंबर का एक निदान है। और ये जैसे ये इसी वजह से आते हैं कि हमारे जो त्रिविष हैं, राग द्वेष मोह, इनकी वजह से हम इसमें पड़े होते हैं। और जो तुम्हारी 3 शिक्षाएं हैं, शील समाधि प्रज्ञा, तो इनके अभ्यास करके हम जो है अपने त्रिविषों को हटा सकते हैं। और जहाँ तक 3 शिक्षाओं के अगर सार के बारे में बात करूं तो मैं धम्मपद में कहे गए इस वाक्य के द्वारा कहना चाहूँगा, जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप अपने चित्त को शुद्ध करें, शील के द्वारा उसको आप अपने संचित करें या फिर शुद्ध करने की कोशिश करें। और आपके जो विचार हैं, जो आपकी बोली भाषा जो भी है विचार हैं, वो समाधि के द्वारा उनको आप ठीक करें, उनका एक प्रकार से रक्षा करें। और इसके साथ साथ आप समत का, अपने जो समत है वो जो आंतरिक चित्त के लिए है सही करने के लिए उसका आप अभ्यास करें, विपස්සना करें। एंड उसके अंत में जाकर के जो आपकी सत्य प्रज्ञा है, सही की सम्यक ज्ञान है, उसको आप प्राप्त करें। ये धम्मपद में कहा गया है, इसमें यहाँ मैं संक्षेप में ऐसे बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो 4 जो बातें मैंने कही हैं, ये खासकर जो भगवान बुद्ध के धर्म है उस पर आधारित, अभ्यास पर आधारित मैं कह रहा हूँ। तो इसके अलावा जो हमारे जो जैसा कि मैंने कहा, वो हमारे अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए, शांति लाने के लिए होते हैं और आपकी प्रज्ञा को भी प्रखर करने के लिए होते हैं। और ये जो वास्तविक देखा जाए, जो हमारे 3 जो अभ्यास हैं उनको प्राप्त करने के लिए हैं। तो इसलिए अपने चित्त को शील के द्वारा आप परिशुद्ध करें। तो इसका मतलब ये है कि आपको निरंतर अपने आपका जो काय है, चित्त है और जो आपका वाक है, इन तीनों पर अच्छी तरह से विचार रखना चाहिए, हमेशा पड़ताल करके रखना चाहिए कहीं इसके द्वारा कोई अकुशल कर्म तो नहीं हो रहा है। जब हम इसको रक्षा की बात करते हैं या फिर इसको देखभाल करने की जब बात कहते हैं तो उसका मतलब हमें सम्यक समाधि होनी चाहिए। उस सम्यक समाधि में रह कर के ही इनको देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको समत और विपස්සना दोनों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जो सम्यक प्रज्ञा है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर रूप से हमें स्मृति में रहने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि हमें जो अल्टीमेट विजडम अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति है, इनका अभ्यास करके, सच्चा अभ्यास करके, ज्ञान प्राप्त करके, सत्य हमारी जहाँ तक जो ज्ञान हो, सम्यक दृष्टि हो, जो सम्यक स्मृति हो, सम्यक विचार हो, इनके आधार पर जाकर के ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें जो है 3 शिक्षाओं शील समाधि प्रज्ञा का बड़ी ही सावधानी से अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो ग्रीड हैं, जो लालचपन है, क्रोध है, हेटर्ड है, अज्ञानता है, इनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो फिर बात उठती है कि जो शील का प्रमुख अर्थ क्या है या खास अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को मना करें कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आखिर हम ये नहीं करूँगा तो हम क्या लेने जा रहे हैं, तो हमको क्या अडॉप्ट करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो इत्यादि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से अभ्यास है, तो मुख्य रूप से इनका अभ्यास करना चाहिए। We are an international conference now, so we will be translating your most venerable speech into English now. Thank you. 不是，코로나 기간다 너무
인지를 교회에 Okay, so now, um, so next I would like to introduce our third opening remarks तो अगले speaker, तीसरे जो हमारे वक्ता हैं Most Venerable Dr. Dhammadipa तो Dhammapiya from India. जो डॉक्टर धम्मपिया Venerable इंडिया Dr. से Dhammapiya is the Secretary General जो of जनरल the सेक्रेटरी International Buddhist इंटरनेशनल बुद्धिस्ट Confederation or आईबीसी IBC, के जनरल the सेक्रेटरी global हैं umbrella of Buddhist body with तो उनको members मैं बुलाना चाहूँगा gone from 39 countries of over 320 organizations from both monastic and lay people to preserve, share, and promote the Buddhist teachings and values in the global discourse. So now may I invite Most Venerable Dr. Dhammapiya to give his opening remarks for तो अब मैं डॉक्टर धम्मपिया को बुलाना चाहूँगा कि आप अपने जो आज के सत्र है उसमें अपने बात रखें भगवान् बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। I take this opportunity to express my deep respect to His तो आज Holiness the Dalai Lama जो मुझे अवसर and प्राप्त also हुआ है greetings उस समय to all venerable मैं परम पावन जी members of Mahasangha, अन्य लोगों को esteemed upasakas and upasikas, उसके अलावा उपासक उपासिकाएं who have come online, जो भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को online international देख रहे हैं उस Buddhist जो conference from different अंतर्राष्ट्रीय traditions across the globe. कार्यशाला में भाग ले रहे हैं उन सभी का मैं अभिनंदन We करता are हूँ। discussing today on the topic तो आज का जो विषय है त्रिशिक्षा जो in त्रिशिक्षा Sanskrit है अर्थात शिक्षा Sikha ये in पाली में Pali कहा जाता है tradition. त्रिशिक्षा संस्कृत में कहा जाता This है is only तो a इस nomenclature के for the अवसर name. पर है ये तो केवल नाम है Whether we call त्रिशिक्षा चाहे or मैं इसको त्रिशिक्षा, हम लोग त्रिशिक्षा कहें या it त्रिशिक्षा refers to कहें the same तो teachings इसका of the Buddha. अर्थ भगवान बुद्ध के शिक्षाओं से ही We may है। have different traditions, तो हम लोगों के different अलग अलग branches, परंपराएं अलग अलग but हो सकती हैं अलग अलग our ब्रांच हो root is the सकते हैं same. लेकिन जहाँ तक हमारे Our मूल की Buddha बात is the करें same. तो वो समान हैं। Sakyamuni the Buddha तो and his साक्य मुनि teachings, बुद्ध Dhamma और उनके Vinaya. जो We शिक्षा all धम्म follow the same अभिधम्म teaching, विनय वो but समान ही है। in different languages, in different dialects, तो अलग अलग different भाषाओं में हैं अलग अलग socio-geographical बोलियों में हैं अलग अलग setup क्षेत्रों or में हैं socio-cultural background. और अलग अलग इसके जहाँ तक As I have सांस्कृतिक said, we have जो only one बैकग्राउंड के rule बारे में in कहा different जाए branches. तो अलग अलग हैं। And it is really a great opportunity, and we are very much thankful to His Holiness for तो organizing this kind of ये बहुत बड़ा coming अवसर है together of कि परम पावन जी इस different प्रकार के Buddhist traditions, जो कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि अलग अलग different परंपराओं के लोग countries, अलग अलग different देशों के background, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से prove साथ आ that we सकें coexist harmoniously तो among जिससे our वो कह Buddhist सकें कि हमारे brethren, साथ साथ जो brothers and sisters. जहाँ तक कहा जाए So we follow जो कि धर्म either संभाव Nalanda को लेकर के tradition चल रहे हैं or Theravada चाहे हम tradition नालंदा परंपरा को मानते or हों चाहे थेरवाद other परंपरा को मानते हों या tradition, जो भी whatever परंपराएं we हों name, जिस किसी को but भी we परंपरा को coexist. मानते We हों understand. लेकिन Our हम teaching सभी is the साथ साथ same. हैं एक So दूसरे we के already साथ had रहते हैं some एक time दूसरे को समझते back हैं the dialogue on Vinaya, where we found there is no difference. तो जहाँ तक विनय के अभ्यास के बारे में बात करें तो उसमें कोई अंतर नहीं है The Vinaya is different, but essentially तो जहाँ the तक Vinaya तरीके is अलग same. हो सकते हैं So लेकिन also Dhamma, जहाँ the अभ्यास teachings की of the बात Buddha करें वो is the समान same. हैं तो भगवान बुद्ध के So, जो शिक्षाएं हैं वो here समान हैं the teachings of the Buddha, the main teachings of the Buddha, it can be subsumed under Tisikha or तो भगवान बुद्ध Trishiksha. की जो शिक्षाएं हैं उनको तीन जो शिक्षाएं हैं शील समाधि प्रज्ञा इनमें बांट करके हम रख सकते हैं तो इनको एक प्रकार से विज्ञान के द्वारा भी देख सकते हैं Where to start? एक वैज्ञानिक धर्म के रूप में है
तो ये कहाँ से starting शुरू point होना of the चाहिए? teachings of the Buddha that Buddha himself has started, the first is dassana. तो उस In भगवान बुद्ध Pali, ने it's पहले called dassana, means objective तो भगवान बुद्ध ने observation, जहाँ तक शुरू में ही जो प्रवचन दिए knowing वो दर्शन करना, objectively देखना, the state of किसी भी चीज़ affairs को that जो exists in जिस the प्रकार से surroundings. उसी प्रकार That's से what Siddhartha समझना, Gautama, when he set उसको out समझना। to see things around तो उन्होंने his कहा कि palace, आइए he कि हम first जो observed जो things चीज़ें around हैं, and जो he भी found धर्म हैं, that उनको हम old देखें, man, समझें। sick man, तो उन्होंने भी बूढ़े dead को body, देखा, and वृद्ध then को देखा, saint or the बीमार को देखा monk. और That's what मृत को देखा, observation. भिक्षु को So देखा। Buddha's तो teaching उन्होंने भी starts with ये observation, उन्होंने शुरुआत से देखा। objective तो उन्होंने observation. जो भगवान Know the बुद्ध की things जहाँ as it शिक्षाएं is. हैं तो वो एक This is दर्शन what से very हैं, important. The देखने से Buddha's होता teaching है। is a scientific, it's तो a इससे science. स्पष्ट होता है कि भगवान The बुद्ध next के step in जो the Buddha's प्रवचन teaching or हैं in the वो एक process of वैज्ञानिक हैं। learning, acquiring और उसके knowledge and अलावा wisdom जो is जो Vipassana. भगवान बुद्ध के Vipassana means जो after you observe शिक्षाएं हैं things, वो then दर्शन you से start संबंधित हैं। questioning. What is that? You start analyzing how things happen. और You फिर start यह भी doing व्यवस्था है कि research, कैसे हम चीज़ों को verifying, समझें, trying to कैसे उनको understand समझा जा deeply सके, about the उनको गहराई से कैसे समझ interdependent सकें। nature of things. और जो जो It is चीज not only वस्तुओं one का thing exists, जो but प्रति there are many समुत्पन्न things that exist, प्रकृति they है are उसको कैसे interdependent. समझा जा That सके। is actually Vipassana, trying तो to उन्होंने know कहा things, पश्यना, reality at a देखना, deeper level. वास्तविकता को देखना, गहराई से That means देखना। when we proceed from dassana to passana, तो जब हम दर्शन we करके are जो देखने के removing बाद अगर element of blind faith. गहराई में There जाते is हैं, no जब blind जाएंगे faith in the तो Buddha फिर Dhamma, हम एक अज्ञानता को हटा because देते we हैं। are तो directly बौद्ध धर्म trying में to कोई know अज्ञानता the की बात, reality, एक प्रकार अंधविश्वास की बात नहीं है। objectivity, analysis and direct experience. So there is no blind faith, and there is no element of accepting something which is not clear. तो ऐसा भी नहीं है The भगवान next बुद्ध step के in the कि जिन चीज़ों को आप process ठीक से न समझ is पाएं vipassana. तो उनको न In बताएं। हर चीज़ का स्पष्टीकरण One किया goes गया है। deeper and deeper, तो deeper जो and कोई deeper अगर as गहराई level से अगर चला where जाता है, one गहराई से समझने understands की the कोशिश Dhamma, the करता है, reality, the तो nature, वो धर्म energy को level, जो at सत्यता energy है level, उसको समझेगा, that is in a very deepest वो एनर्जी level, लेवल Sankala पर path, समझेगा। where one finds whatever things are there appearing to us, it is not solid. It is तो not जिन how it चीज़ों appears को to हम us. देख There is रहे something हैं deeper वो कोई meaning. चीज़ें Thereby सॉलिड comes नहीं हैं। the concept of anicca, dukkha, anatta. That means तो उसको things अनिच्छ, appear अनित्य to और us दुख as इसकी तरह से समझना permanent, चाहिए। solid, but essentially it is not permanent. तो It's हमें हालांकि impermanent. लगती हैं कि वो परमानेंट Continuous हैं, flux लेकिन and वो flow. कोई चीज़ें परमानेंट नहीं होती Flowing हैं। हर चीज़ anicca, impermanent. That's what परिवर्तनशील it है, बदलती रहती becomes है। clearer at the deeper level when one does vipassana. Then तो जब कोई dukkha, विपස්සना that means करता है तो whatever things are वो floating उनकी सत्यता को impermanent, समझ that सकते has हैं। the characteristics of unsatisfactoriness, dissatisfaction. That's how one comes to realize. That is, vipassana is a state of realization of this impermanent nature and then the unsatisfactoriness, dissatisfaction in whatever things that exist. And then anatta, that is तो the जहाँ तक अनात्म egolessness, जो selflessness, not जो I. अनात्म फिर के बारे में भी Cling कहा so much गया to है, I, तो इसमें when जो we हमारा do अहंकार है, मैं vipassana, है, इसको when we practice हटाना। vipassana, then at that level, तो जब we हम find there's विपස්සना का no अभ्यास I करते as हैं such, no तब जा कर Atman, के no I, no पता ego, लगता है कि जो आत्मा नहीं है nothing as या हमारा such घमंड वो भी नहीं है, So this is सेल्फ the नहीं रहते हैं। realization of anicca, dukkha, anatta at the deepest level at vipassana when we do these things. And when we are talking about this Tisikha, the Sila Sikha, तो जब तीन and सच्चाशील समाधि It's very प्रज्ञा important के बारे में जब बात करते हैं तो to ये have बहुत ही महत्वपूर्ण the है। right view, तो इस समय right महत्वपूर्ण बात perspective, ये होती है कि right हमारी जो understanding सम्यक of दृष्टि things. होनी चाहिए, सोच विचार अच्छा होना Unless चाहिए। until we have right perspective, right तो जब view, तक right हमारा अच्छा mapping of विचार the नहीं world होगा, and the सोच life, विचार ठीक then नहीं होगा, the तब life तब and तक also हमारा the जो world जीवन may है lead to escape. वो भी ठीक नहीं That is what's रहेगा, happening nowadays. एक We are दुखी confronted जीवन with रहेगा। so many तो आज देख सकते हैं कि challenges कितनी and समस्याएं से हम लोग गुजर रहे हैं, कितनी crises समस्याओं का सामना brought करना up पड़ रहा है। due to wrong understanding or wrong perception that we are having और about the world. जो विश्व We के want प्रति हमारी more जो and मिथ्या more things in विचार our life बन गया है, at the हम cost ज़्यादा of से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं। destroying तो हमारी animals, यही उम्मीद रहती है nature कि and the लोगों को forest, मारा जाए, environment.
हत्याएं की जाएं, पर्यावरण को नष्ट किया जाए, इस आधार पर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो ये जो जीवन की एक प्रकार से गलत विचार है, तो इसलिए शील, समाधि, प्रज्ञा, इन 3 शिक्षाओं को ज़रूरत है, जिससे कि हम सत्यता को समझ सकें, जो प्रकृति है उसको हम ठीक से समझ सकें। तो हालांकि हम लोग पावरफुल हैं, जो ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर नकारात्मक विचार ही प्रभाव ही पड़ता है। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये समझना चाहिए। तो समाधि शिक्षा के बारे में बात करें, समाधि के बारे में बात करें, तो ये हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए है। तो अपने चित्त और मन को जो दोनों को साथ साथ रख सकें। Go to the second stage of the Sikha, that is Samadhi Sikha. A person's mind and heart can be developed. तो जब हम दूसरे दोनों जब समाधि के बारे में बात करें, तो चित्त और मन को, चित्त और जो हमारा मन है, दोनों को साथ साथ रख सकें। तो आज हम देखें कि जो दुनिया में एक प्रकार से अतिवाद है, हिंसा है, उससे गुजर रहे हैं, भौतिकवाद में जूझ रहे हैं। तो इसलिए हमें जो मध्यम मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें मध्यम मार्ग हो, चाहे विचार हो हमारे, चाहे बातचीत हो या फिर रहन सहन हो, वो मध्यम मार्ग ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये प्रज्ञा, समाधि और प्रज्ञा, ये सब की बहुत ही जो आवश्यकता है। तब जो कोई व्यक्ति अपने चित्त को उत्पन्न करता है, और जब व्यक्ति के दिल में करुणा उत्पन्न होती है, और भगवान बुद्ध के जो शील, समाधि और प्रज्ञा, तीनों को जब तीनों के आधार पर जब चलता है, तो उस समय समाज में भी सकारात्मक एक प्रभाव पड़ता है, विश्व में उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो त्रिशिक्षा की जो महत्व है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने हृदय को, मन को शुद्ध करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विश्व के प्रति हमारे जो सोच विचार है वो अच्छा बने, इसके लिए जो भी अतिवाद है उसको नष्ट किया जा सके, हिंसा को हटाया जा सके, और जो हमारे जो जीवन है उस पर हम चल सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी हों। Thank you, Most Venerable Dr. Dhamma Diya, for your opening speech. As we all know, we are all the same Buddhists. We spread out throughout the world, and this is तो हम सभी लोग समान बौद्ध हैं और विश्व में अलग अलग फैले हुए हैं। तो शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग सभी लोग साथ आए हैं, एक कार्य के लिए आए हैं। Following the teachings of the same Buddha. तो हम लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनते हैं, और परम पावन जी दलाई लामा जी एक उदाहरण हैं कि वास्तव में करुणा के किस प्रकार से एक जीते जागर उदाहरण हैं, कि वो सभी को जोड़ने के प्रयास करते हैं, बुद्ध के सभी संघ को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों की जो जहाँ तक पीढ़ियाँ हैं, वो अलग अलग जनरेशन से अलग पीढ़ी हैं। तो हमें तो मैं परम पावन जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि परम पावन जी आज प्रवचन दे, अपनी बात रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध की स्तुति। तो आज अलग अलग राष्ट्रों के जो संघ हैं, वो लोग, और ख़ास करके जो विनय धारण करने वाले हैं,
तो आज उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो मुझे भी बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। तो आप लोग जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो निरंतर रूप से करेंगे, 2 दिन की ये संगोष्ठी है। तो आप लोग आपस में बातचीत करना एक दूसरे से, तो आप लोग अच्छी तरह से करें, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो जब आप इसमें वार्ता करें तो जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो कि दूसरों के विचारों को नष्ट करना, फिर अपनी बात को रखना, फिर जो वाद विवाद हो रहा है उसको समाप्त करना, तो 3 विधियों के द्वारा ये किया जाता है। तो इसलिए तो ऐसा नहीं है कि केवल अपनी बात ही कहते रहें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल अपनी बात ही नहीं करनी है, दूसरों को भी सुननी है। जो विरोधाभास हो तो उसको, तो मेरी उम्मीद है कि आपका जो संगोष्ठी है वो बहुत ही बृहद हो। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है तो पिछले 2600 वर्षों से व्याप्त है। तो एक प्रकार से एक परंपरा जैसी चली आ रही है। तो आजकल आप देखें तो कुछ ऐसे भी हैं जो बौद्ध नहीं हैं, फिर भी भगवान बुद्ध के धर्म को प्रति रुचि जैसी है। जैसे कि आप वैज्ञानिक लोगों को देखें, कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो अक्सर हम लोग जो महायान और जो हीनयान शब्द जो कहते हैं, तो ये शब्द ठीक नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि ये उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसकी जगह पर पाली और संस्कृत परंपरा अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पाली परंपरा में देखें तो जहाँ तक विनय की बात देखें, जो त्रिशिक्षा है उनको भी देखें, वो भी एक आधार के रूप में है। और उसमें जो नालंदा परंपरा को अगर देखते हैं तो त्रिशिक्षा की जहाँ बात है वो प्रमुख रूप से है। तो नागार्जुन, उनके शिष्य, तो उन्होंने जो भी भिक्षु हुए हैं वो सभी विनयधर थे, विनय को मानने वाले थे। तो उदाहरण के जो हमारे एक आदर्श हैं, भगवान बुद्ध को देखें, वो एक सामान्य पुद्गल से पुरुष से फिर उन्होंने भिक्षु बने, गृह त्याग किया, भिक्षु बने। तो जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति इनका पालन करता है उसी प्रकार से वो भी रहे। फिर उसके अलावा भिक्षु, भिक्षुड़ी, उपासक, उपासिका इत्यादि जो होते हैं, तो जाकर भिक्षुओं के अगर हम शीलों की बात करें तो उनके भी अपने विधि विधान हैं, नियम हैं। तो पाली परंपरा में तो अगर देखें तो आधार तो उनका जो विनय है, तो विनय ये प्रमुख रूप है, भिक्षुओं के लिए विनय प्रमुख होता है पाली में और संस्कृत जो भी परंपरा हो। तो जैसे कि मैं एक मनुष्य होने के नाते तो मेरा यही प्रयास रहता है कि इस दुनिया में जो करुणा और मैत्री ये बढ़े। ये मैं पूर्व जन्म और पर जन्म इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कि एक व्यक्ति होने के नाते मेरे प्रयास यही रहता है कि लोगों में एक सद्भाव बने, करुणा फैले। तो दूसरी बात, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं,
तो फिर उसके अलावा भी हम सभी लोगों के जो विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। और सभी धर्म यही कहते हैं कि हमें करुणा, मैत्री इनका अभ्यास करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में देखें तो बौद्ध धर्म में भी देखें तो नालंदा परंपरा में देखें तो उसमें भी अलग अलग सिद्धांत को मानने वाले हैं, उनमें भी थोड़े मतभेद हैं। तो जहाँ तक सिद्धांत की बात करें, दर्शन की बात करें तो लोगों की आवश्यकता के अनुसार से होते हैं। तो लेकिन इन सब में से अगर देखा जाए तो सभी यही कहते हैं कि हमें एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए। और ये इस प्रकार के विचार सभी धर्मों में हैं, सभी लोग कहते हैं। तो इनको अगर दो भागों में बांट करके देखें तो धर्मों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक ईश्वरवादी, एक अनीश्वरवादी। तो इनके हालांकि सिद्धांत अलग अलग हैं, दर्शन अलग अलग हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे ईश्वर करुणा से उत्प्रेरित हैं, उन्होंने ही हम सबको बनाया है। और जो हमारे ईश्वर हैं एक पिता के समान हैं, जो हमारे सृष्टिकर्ता पिता के समान हैं, ऐसे जो कहते हैं, ऐसे लोगों के विचार हैं, ऐसी उनकी मान्यता होती है। तो हम लोग अगर ऐसे विचार हैं तो फिर जो हम पुद्गल जो मनुष्य हैं वो उनके पुत्रों के समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सब धर्मों को देखें तो उनके जो विचार हैं प्रेम और करुणा के समान होते हैं। दर्शन के माध्यम से अमल अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, तो नालंदा परंपरा की एक परंपरा, एक पाली परंपरा और या संस्कृत परंपरा और पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा दो अलग अलग हैं। तो पाली की जो पाली परंपरा है वो बुद्ध के एक आधार के रूप में है। तो जैसे संस्कृत परंपरा में अगर देखें तो वो भी विनय का जो अभ्यास है वो भी मूल है, जो सर्वास्तवादी। और इसके अलावा तो ये अलग अलग इसमें भाग हैं, अलग अलग निकाय होते हैं। तो तिब्बत की बात करें तो मूल सर्वास्तवादी परंपरा को मानते हैं। तो तिब्बत में जो धर्मगुप्तीय परंपरा है, चीन में धर्मगुप्तीय परंपरा है, अलग अलग व्यवस्था जो अलग अलग परंपराएं हैं। और तो जहाँ तक प्रतिमोक्ष की बात करें वो सब में समान है। तो जो पाली परंपरा को देखें तो बुद्ध के जो शासन के एक मूल रूप में कह सकते हैं, आधार रूप में कह सकते हैं। और नालंदा एक जहाँ जो एक अलग संस्कृत परंपरा की है। तो उस समय नालंदा में जो संस्कृत को जानते थे तो उसके माध्यम से अध्ययन अध्यापन किया गया। तो जहाँ तक नालंदा परंपरा से जो भी बौद्ध धर्म की व्याख्याएं हुई वो संस्कृत में हुई, तो इसको संस्कृत परंपरा कहा जाता है। तो तिब्बत में 11वीं शताब्दी में जो भारत से आचार्य शांतिरक्षित गए और तिब्बत के राजा धर्मराजा, तो उन्होंने माना कि जो मूल है वो धर्म का मूल है भारत से हो। तो हालांकि उस समय चीन से भी धर्म आया, एक प्रकार से संबंध हमारे रहे हैं। तो मूल अगर देखा जाए तो शांतिरक्षित को तिब्बत में बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि आपको आपकी भाषा है, आपकी तिब्बती भाषा है, तो आपको पाली और संस्कृत को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ही संस्कृत और पाली को आप अपनी तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद कर लें। अगर आप इसको अनुवाद करके जो श्रवण और चिंतन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगी, लाभदायक होगा। तो
आप अनुवाद को देखें तो अभी तिब्बती भाषा में काग्यर जो शास्त्र हैं वो 200 के आसपास और सूत्र है कोई 100 के आसपास हैं, तो लगभग इस प्रकार से हैं। तो जो विनय के बारे में 13 जो ग्रंथ हैं, सूत्रों के बारे में बहुत हैं, अभिधम्म के भी बहुत सारे ग्रंथ जो अनुवाद में हुए हैं। तो सबको देखा जाए तो सूत्रों के जो अनुवाद हैं वो कोई 100 के आसपास पोथी बन जाती हैं। फिर उनके अलावा जो टीकाएँ, तो नागार्जुन और उनके शिष्यों के द्वारा इन सूत्रों की जो टीकाएँ की गई तो उनकी संख्या लगभग 225 या 200 से अधिक है, तो उनको शास्त्र कहा जाता है। तो इनको आपको अपने भाषा में अध्ययन करना चाहिए। तो आज के समय में जो तिब्बत में जो हैं, जो आचार्य संतरक्षित जिन्होंने इसकी व्याख्या की है, तो ये काफ़ी एक बड़ी एक संख्या में हैं, गंभीर रूप से हैं। तो आचार्य संतरक्षित जो हैं वो भी प्रमाण को जानने वाले थे, विद्वान थे, तो उन्होंने भी प्रमाण के ग्रंथों की रचना की है। तो हमारे जो तिब्बत में जहाँ तक प्रमाण के ग्रंथ हैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जब प्रमाण के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक परीक्षण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, केवल आगम के तौर पर, शब्दों के तौर पर नहीं। तो अगर प्रमाण के आधार पर अगर चलते हैं तो उसके परीक्षण किया जाता है। तो जहाँ तक प्रमाण के बारे में बात करें तो नागार्जुन इत्यादि जो थे वो इसकी व्याख्या करते हैं, और उसके अलावा भी जो दिग्नाग हैं तो उनके प्रमाण समुच्चय और धर्म कीर्ति की और धर्म कीर्ति की जो प्रमाण के मूल जो हैं उनको अगर देखें तो हम लोग भी उदाहरण अगर देते हैं कि तो जब मैं छोटा था तो बचपन से ही इनको मनोविज्ञान के विषय हैं, न्याय के विषय हैं, उनको मैं पढ़ते थे। तर्क कैसे किया जाना चाहिए, उसके अलावा तो तिब्बत में जो प्रमाण के जो अभ्यास की बात है वो बहुत ही बृहद व्यवस्था रही है। तो प्रमाण के जो न्याय के विषय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के समय में देखें कि विज्ञान ने बहुत सारी जो तरक्की की है वो हमेशा परीक्षण करते हैं, वो केवल शब्दों पर ही नहीं, केवल श्रद्धा बस चलते हुए ऐसी बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे मेरे बिच्छू, जिस प्रकार से सुनार सोने को काट कर रगड़ कर तपा कर देखता है कि ये सच्चा सोना है कि नहीं, उसी प्रकार से मेरे भी वचनों को आपको परीक्षण करना चाहिए, ना कि आपको श्रद्धावश नहीं मानना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप भी अच्छी तरह से परीक्षण करें, आप पढ़ करके अभ्यास करके उसका अभ्यास करना चाहिए, ना कि श्रद्धावश मेरे वचनों को आप माने। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो प्रमाण जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं मानता हूँ कि जो पाली परंपरा को जो संस्कृत परंपराओं को जो पाली को मानने वाले हैं वो भी अगर प्रमाणिक ग्रंथों को अगर पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो तिब्बत में जहाँ तक अध्ययन किया जाए वो प्रमाण पर आधारित है। और फरछीन के समय में आर्य मैत्रेयनाथ के द्वारा, तो उनके द्वारा भी जो उनकी टीकाएँ हैं
21 प्रकार के जो टीकाएं हैं जो भारतीय आचार्यों के द्वारा लिखी गई हैं, फिर जो जे रिम्पोछे के सुभाषित वचन लेसे सेटिंग तो इत्यादि बहुत ही अच्छे हैं। तो जहाँ सिद्धार्थ के तो जो भी टीकाएं हैं उनको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही लाभदायक हैं। उसके अलावा जो माध्यमिक दर्शन के हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे ग्रंथ हैं। तो अगर कोई जो बुद्धि वाला अगर कोई व्यक्ति है तो अगर अच्छा तो जो दिलवा के अगर विनय की बात है उसमें बहुत ज़्यादा कोई तर्क की बात नहीं है, उसमें कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा जटिल हो, उसके अलावा नहीं है। और अभिधर्म की बात करें जो चंद्रकीर्ति के द्वारा जो बसवंधु और दिगनाग और भाव विवेक और धर्मगुप्त तो उन्होंने जो है उनके जो ग्रंथ हैं तो उन्होंने कहा है कि केवल उसको श्रद्धा के आधार पर देख सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परीक्षण तो नहीं है। तो जहाँ तक अभिधर्म की बात करूँ तो उसमें चित्त चैतसिक तो ये तो अच्छी बातें हैं, इसके बारे में तो अच्छा कहा गया। तो बाकी के अलावा तो बाकी के जो जैसे सूर्य और चंद्र इत्यादि के नाप तौल उसमें की गई है तो वो उतने लाभदायक नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ कि बसवंधु जब अभिधर्म जब की जो अभिधर्म जब जो कोश करेगा लिखी होगी उस समय शायद उनकी आंखें ठीक नहीं होगा। तो उस समय तो जब वहाँ बादल छाए हुए होंगे तब देखा होगा कि सूर्य और चंद्र की जो नाप है या फिर आकार है समान जैसा बताया तो ऐसा रहा होगा, शायद वो स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितनी जब इस जो परीक्षण इसके ऊपर हुए कि जो दूरी है सूर्य और चंद्र के बीच की बहुत ज़्यादा दूरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत नज़दीक हो। लेकिन हम जब आकाश में देखते हैं तो लगता है कि बहुत दूर नहीं है, पास दिखता है। लेकिन जब इनकी वास्तविकता के तौर पर देखें तो इनके बीच की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो चंद्रकीर्ति भी एक उदाहरण रखते हैं। तो इसके अलावा उसमें जो कि सुमेरु पर्वत इत्यादि की बातें की गई तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं कि, लेकिन जहाँ तक विनय की अगर बात करें तो सबसे पहले बुद्ध को ही आप देखें कि फिर आप सामान्य पुद्गल को देखें 5 सील के बाद फिर भिक्षु अगर कोई बनता है तो उसके सील, फिर श्रामणेर बनता है उसके सील, फिर भिक्षु के सील। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था रहती है। तो तिब्बत में जो प्रमाण के जो ग्रंथ हैं उसका जो अध्ययन करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप तिब्बत में देखें तो वहाँ पर केवल शब्दों को नहीं मानते हैं, इतनी आसानी से नहीं मानते हैं, उसको पहले परीक्षण करते हैं, उस पर शास्त्रार्थ करते हैं। तो हम लोग आजकल तिब्बती जो माफ़ करना वैज्ञानिक लोगों के साथ भी वार्ता कर रहे हैं तो वो आसान लगता है उनके साथ, क्योंकि हम लोग भी प्रमाण कुछ पढ़े हुए हैं।
तो आप लोग जो अभी त्रिय शिक्षा के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो विद्वान लोग जो हैं, आप लोग उसके बारे में जो वार्ता करेंगे। तो आजकल देखें कि पहले तो ऐसा समय था कि जहाँ पर कोई कोई राष्ट्र तो ऐसे थे जहाँ पर कभी धर्म के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, बौद्ध धर्म के बारे में नहीं सुना था, लेकिन आज हर जगह ये व्याप्त हो रहा है, सभी लोग सब जगह पहुँच रहा है। तो अगर आधार के बारे में देखा जाए तो हमारे शील समाधि प्रज्ञा इसके एक आधार हैं। तो इसलिए आप जो अच्छी तरह से वार्ता करें, अच्छी तरह से संवाद करें। और इसके अलावा भी जो इस दुनिया में बहुत सारे जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी 3 शिक्षाएं हैं उनके साथ साथ उनका संबंध किसी न किसी तरह से रहता ही है। तो आप लोग उसके बारे में विचार करें अच्छी तरह से, और उसमें हमारी जो समानताएं क्या हैं, और हम जिस चीज़ पे हमारी समानताएं जो नहीं बन रही उसकी वजह क्या है। तो ये अगर आप परीक्षण करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके बाद प्रश्न उत्तर हैं। Any question? Thank you, Your Holiness. As we have seen that it must have been very, very difficult for our masters in the past to come together. तो ये बहुत मुश्किल था कि अलग अलग भाषाओं के लोग थे, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी लोग साथ साथ आ रहे हैं। तो कुछ जो टेक्निकल समस्याएं होती हैं तो हो जाती हैं। तो आपके प्रश्नोत्तर से पहले कि जो श्रीलंका के भिक्षु जो वेनरेबल मुकुलवे बिमला महानायक थेरो, द चीफ जो महानायक ऑफ श्री रामन महानिकाय श्रीलंका से हैं, उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आएँ। हालांकि इनका परम पावन जी से पहले था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाए। तो उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने शब्द रखें। Thank you, Most Venerable. So Most Venerable Makilawe Wimala Mahaniki Thero is the supreme head of the Sri Lankan Ramana Mahanika. तो ये जो ये मुकोले बिमला महानायक थेरो, तो महानायक ऑफ श्रीलंका रामान जो महानिकाय है उसके हेड हैं, प्रमुख हैं। Give the opening remarks. Thank you. Most Venerable Makilawe Wimala Mahanayiketero. As you can see, this conference has been started and gone. We've been working together for 15 countries. We're translating into 15 languages today. तो आज 15 भाषाओं में इनका अनुवाद हो रहा है। तो कुछ एक भाषाओं में इसका थोड़ी समस्या आ रही है। Maybe Most Venerable. Oh, okay. Thank you, Most Venerable. Please proceed. Yes. So Most Venerable Makilawe Wimala Mahadiyaketero from Sri Lanka will provide us with the opening remarks for our conference today. Okay, thank you.
The setting up has been very challenging for all these different countries to come together. So thank you all for your patience. Most Venerable, you can proceed. Thank you. His Holiness Dalai Lama, मैं भिक्खु जिन मोस्ट वेनर धम्मप्रिय और महासंघ, तो आप सभी जो स्पीकर है उनको मैं स्वागत करता हूँ। Lama, Most Honorable Bhikshu Jing Yo, Most Honorable Dr. Dhamma Priya, the members of Mahasangha. तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो एक अवसर दिया गया है और शील समाधि प्रज्ञा तीनों पर जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उस सब के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। As a Buddhist monk, to help everyone to lead a good life. To lead a good life, shiksha, namely virtue, and wisdom, or sila samadhi. तो जहाँ तक शील के बारे में बात करूँ तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पाली में जो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए इनकी आवश्यकता रहती है। और जहाँ तक प्रति समुत्पाद या मध्यम बटपदा में भी कहा गया है, उसको 8 अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। और ये भगवान बुद्ध के द्वारा जो शील समाधि प्रज्ञा के बारे में कहा गया, तो इनके द्वारा अपने चित्त और शरीर को किस प्रकार से हमें प्रशिक्षित करना है। और भगवान बुद्ध ने कहा है, परिनिर्वाण सूत्र में भी कहा है कि शील परिभवतो समाधि महाफलो होती महानिसमो मीस के जो हमारी जो चित्त है वो किस प्रकार से एक जगह रह सके, कैसे हम बस में कर सकें। और भगवान बुद्ध ने इसके अलावा भी कहा कि जो हमारा जो चित्त है जिसके द्वारा जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इसमें सारे के सारे जो बुराइयां हैं उससे मुक्त हो, और जब मुक्त होगा तभी जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है, अरहत को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो हमारे कुशल कर्म हैं, कुशल कर्म ही हमको समाधि की तरफ ले जाते हैं। और जब हमारे समाधि गंभीर हो जाती, गहन हो जाती है, तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद शील through the fruit of arahantship. Therefore, virtuous behavior leads to concentration, and the strong concentration तो प्रतिमोक्ष of wisdom of the insight meditation. जो संवरशील है उसमें भी हमारे जो बुद्धों के नियम हैं उसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है। और जो भिक्षु होते हैं उनको 227 प्रतिमोक्ष को मानना पड़ता है, उनके नियम को मानना पड़ता है। उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं, और जो बड़े हैं नियम उनको सेखिया कहा जाता है, जो कि हमारे सामने के लिए होते हैं। और भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि प्रतिमोक्ष जो संवरशील के बारे में उन्होंने कहा कि भगवान अगर कोई भिक्षु या व्यक्ति इन पे अच्छी तरह से चलता है, इनका अच्छी तरह से पालन करता है, तो उसका जो विचार है एक प्रकार से उनका चलने का तरीका अलग होगा। तो इसलिए इनके द्वारा हमारे जो इंद्रिय हैं उनके ऊपर हम एक प्रकार से संयम पा सकते हैं। तो इंद्रिय संवरशील में उन्होंने कहा है
आचारगोचर संपन्न अनुमाते सुभाज्य सुधाय दस्तावे जिन चीज़ों को हम अपनी आँख से देख रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अच्छा हो, बुरा हो इत्यादि, जो हम अपने आँखों से इनको देखते हैं, जैसे कि फिर उसके अलावा हाथ हुए, पैर हुए, मुस्कान हुई, बोलने का तरीका हो, देखने का तरीका हो, जो भी हमारी आँखों के सामने जो विषय बनते हैं, तो उनको हम अनुभव्यंजन कहा जाता है। तो इनको द्वारा हम अपनी नंगी आँखों से भी देख सकते हैं। sense control or indriya sambara sila is the taming of the senses such as the eyes, ears and the nose. तो इसलिए जो किस प्रकार से इनको हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, And to take them इसके बारे में भी भगवान बुद्ध ने कहा है। of their signs and symptoms. The Supreme Buddha preached the फिर उसके बाद जो हमारी जो जीविका कैसे, इसके आधार पर जिस जीविका का भी जो सील का पालन करना है, आजीव परिशुद्धि शीला, and so on. तो जिसके द्वारा हमारे जो मिथ्या आजीविका है उससे बचना चाहिए, दूसरों की हत्या नहीं करना चाहिए। As male or female, auspicious or omnis that trade जो 6 प्रकार के जो सील हैं जीविका के लिए, वो भिक्षुओं के लिए कही गई हैं, तो जिससे के द्वारा हमारे जो विचार हैं, जो अकुशल कर्म हैं, उससे हम बचा जा सके, जिसमें कि कोहाना कहा गया, लपना, नैमित्तिकता, निपेत्तिकता इत्यादि 8 जो 6 हैं, इसके बारे में कहा गया है। इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है कि पूज्य भिक्षु क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद समाधि की बात करें तो समाधि की जहाँ तक करें कि वो हमारे जो मानसिक स्तर पर आधारित होती है, जो हमारी मन की स्थिति है, उसको हम कैसे ठीक रख सकें, कैसे केयरफुल रह सकें, जिससे कि हमारा मन इधर उधर न भटके। etc. The virtue of life और इसको जो है कई तरीके से कहा जा सकता है, उपाचार्य समाधि, अपन्ना समाधि, animal trade तो ये अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तो said should not be practiced by और इसके अलावा 6 अनुस्मृतियों के बारे में भी की गई हैं, जैसे कि बुद्ध अनुस्मृति, such as food, clothing, household, medicine, etc. Considering consciously, the Buddha advises that the bhikkhu should reconsider every time he consumes the 4 requisites. This comprises of using the requisites with consideration such as patisankha yoniso. The practice of fourfold virtue is called the virtue. That virtue tone helps to strengthen concentration. इस जो फिर अगर हम प्रज्ञा के बारे में, पඤ्ञा के बारे में करें, तो पඤ्ञा का अर्थ है कि हमारे आंतरिक ज्ञान, आंतरिक जो संपूर्णता ज्ञान, उसके बारे में कहते हैं। इसके द्वारा जो सच्चा मार्ग उसको हम समझ सकते हैं, अनित्यता को समझ सकते हैं, दुख को समझ सकते हैं, और जो जैसे को उदाहरण के रूप में कि किस चीज़ को, जैसे कि नीला है, पीला है इत्यादि को हम देख सकते हैं, ये हमारी प्रज्ञा के द्वारा हो सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। और जहाँ चेतना है, वो हमारे जो ज्ञान है, अपना समाधि is the concentration from the first absorption. जैसे कि बच्चा, एक कोई गांव वाला हो या गांव का नागरिक हो या कोई सुनार हो, तो उसी चीज़ को अगर इन तीनों से कहा जाए कि सोने को पहचानने की, परखने की बात की जाए, तो वो अलग अलग तरीके से कहेंगे। एक बच्चा है तो वो तो सोने को कुछ नहीं समझेगा, वो उसके साथ खेलेगा, इसकी अहमियत को नहीं समझेगा, वो कुछ भी उसको केवल खेल की चीज़ें समझेगा। और जो गाँव का आदमी होगा, गांव का किसान इत्यादि होगा, तो उसकी वास्तविक मूल्य को नहीं समझ सकता है, वो उसके ज़्यादा कीमत भी नहीं बता सकता है। वो केवल और केवल हाँ कि ये जो बच्चा उससे तो ज़्यादा अच्छा ज्ञान रखता है।
recognition of something as blue, yellow, etc. just by और जब कि seeing it. सुनहरे के पास This जाएं process या is the जो कोई realization of the जो past सुनार है उसके पास अगर of जाते हैं the तो वो सोने की क्वालिटी कोई नहीं This समझता है, system जबकि उसकी makes कीमत one क्या है, understand the उसकी content of the स्थिति past क्या है, through अच्छा the है कि बुरा है, interpretation of इन past सबको समझ सकता है। circumstances तो and उसी events. प्रकार से हमारी जो The प्रज्ञा way है, in which प्रज्ञा के cultivated जो ध्यान के द्वारा जो हमारी knowing about the प्रकृति है, basic values अनित्यता है, are दुख है, और the जो child जो हमारे जो knows nothing इस of दुनिया itself जिस भव चक्र के जो without knowing परेशानियां anything हैं about the peace उनको of समझ mind. सकते हैं, Such is निर्वाण the को कैसे story प्राप्त of किया the जा सकता है recognized उसको समझा example. जा सकता है। The तो village ये इत्यादि बहुत man सारी चीज़ें हैं does not वो know प्रज्ञा के its द्वारा value समझे जा exactly. सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे 8 Recognizes जो the अष्टांगिक understanding more मार्ग than हैं उनके बारे में, the तो outside अष्टांगिक life. मार्ग भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। Recognition is like तो उनमें भी अगर to give, देखा जाए तो 3 भागों को recognizes बांटा the peace जा of सकता God है, correctly. जैसा कि सील, That is the समाधि और wisdom प्रज्ञा। तो of 8 understanding. जो अष्टांगिक मार्गों को तीनों में बांट करके देखा जा सकता है। According तो अरहंत the धम्म दीना, wisdom associated with the insight meditation, जब which is the जो true नन nature of जब the वो impermanent, misery, and infinite तब उन्होंने जो है of the sankharas correctly जो चुल्ल वेदाल जो understood सूत्र में वो through the कहते हैं, realization of the past is called wisdom, refinement. The noble eightfold path, तो वो कहते हैं कि जो हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं वो हमारे व्यवहारों के लिए, हमारे आचार के लिए, समाधि के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। और फिर इसी के साथ साथ जो हमारे जो सम्मा वाचा है, सम्मा कर्म, जो कम्मान जो कर्म हैं, हमारी आजीविका है, और और जो हमारे सील हैं, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, और हमारी सम्यक समाधि है, सम्यक जो दृष्टि है, ये और सम्यक जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारा संकल्प है, वो सारे के सारा प्रज्ञा के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। and the fracture samma samadhi are by the concentration samma तो इत्यादि जो ये सारे के सारे जो जो हमारे केवल और केवल प्रज्ञा के द्वारा संभव है, बिना प्रज्ञा के इनका हम नहीं कर सकते हैं। Thus the purification of the noble eightfold path, the frequency of the तो इसलिए चाहे हमारे अलग अलग उपाय हों, प्रज्ञा हों, जो भी हों, वो जो हमारे प्रति जो अष्टांगिक मार्ग में आते हैं उन सभी का हमें पालन करना चाहिए। will achieve the ultimate result of this dispensation of the Buddha. Sile patipai naro sapanyo chittam panyam. तो इसमें सीले प्रतिष्ठाय नरो सपन्यो Thank you, Most Venerable Makiru इत्यादि। Vimala Mahaketeru. Bhikkhu, who is based on the fourfold purification of virtue and तो who is आपका growing in mental बहुत बहुत concentration धन्यवाद। and who is Thank you, endowed Most with the Venerable wisdom Makiru of the Vimala disciple, Mahaketeru. realized Most Venerable is joining us from all the way from Sri Lanka, which is May not the an triple easy thing to bless you. arrange this big conference that we are doing today. So thank you everyone for तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। As जो you can see, many traditions, many languages. तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इतना आसान नहीं है संस्कृत और पाली परंपरा साथ रख पाना, समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब प्रश्न हैं जो परम पावन जी से कुछ प्रश्न हैं तो वो पूछें। कोई एक संघ के रूप में पाली संस्कृत परंपरा को साथ साथ कैसे रख सकें, इसके बारे में प्रश्न हैं। तो अब जो प्रश्न हैं तो सभी प्रश्न जो है अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न वेनरेबल आन जो वियतनाम से हैं, तो कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। To see you here. तो And good morning, most venerable speaker and distinguished guests. So thank you for giving तो आप सभी को नमस्कार और मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न है, जो पाली और संस्कृत परंपरा है दोनों के बीच में एक
ब्रिज कैसे बनाया जा सके, the एक संबंध कैसे बनाया जा सके। Pratimoksha, तो जहाँ तक विनय की that's बात the करें same. और प्रतिमोक्ष की बात करें, वो समान है, Pali tradition and चाहे Sanskrit वो tradition. पाली परंपरा हो चाहे संस्कृत परंपरा, दोनों में समान है। Like this kind of meeting, the scholars, तो जब इस प्रकार के जब संगोष्ठी होते हैं जिसमें tradition, स्कॉलर्स होते हैं, साधक अभ्यास करने वाले होते हैं, तो ऐसे जब साथ साथ मिलकर के बातचीत होते हैं, Vinaya, तो इसमें इस पर यही निकलता है कि जो विनय है वो हमारा basis of मूल है, समान है। Buddhist practice. तो जो बौद्धों की एक अभ्यास है उस हिसाब से शील, समाधि और प्रज्ञा, Same. तो ये भी समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। Vipassana, Marve, No. Vipassana, और विपස්සना की अगर बात करें there are different, तो उसमें even within थोड़े अंतर होते हैं। also the Sanskrit tradition. तो जहाँ तक there are संस्कृत परंपरा के अंतर, जो उसके अंदर की बात करें Mainly तो उसमें अभी अंतर देखने को होते हैं। Sodhantik, तो खास करके व्यवसाय जो व्यवसायिक, स्वतांत्रिक, so there माध्यमिक are differences. और चित्रमात्रवादी, इनमें आपस में भी Vinaya अंतर हैं। practice is foundation. तो विनय का अभ्यास है वो एक मूल है, दोनों परंपराओं के लिए एक आधार के रूप में है। So like this kind of meeting, I want to say most welcome. तो ऐसे जब सभा होती है तो ऐसे में मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। Now next Thank you, question. Thank you, Your Holiness. We would have 2 more questions for this session. So our तो next अगले question, 2 क्वेश्चन होंगे। from Miss Tan Lian Chu from Singapore, please. Thank you. तो मिस तान लियोन चू सिंगापुर की हैं, ये प्रश्न पूछेंगे। From Singapore, Your Holiness. तो परम पावन Thank जी, you गुड for this मॉर्निंग, great honor ठस्तले। and privilege to be with you and everyone else at this conference तो आज today. अवसर जो पा Our करके question बहुत ही is, खुश हूँ। would it be possible for the Pali and Sanskrit तो मेरा प्रश्न है कि पाली और find संस्कृत enough common ground परंपराओं के बीच में from कोई the एक two कॉमन traditions बात है क्या, translated into secular terms जैसे कि इसको सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष शब्द उपयोग करके इनको एकता के रूप में हो, साथ साथ हो, जनरल रूप में, मोरल एजुकेशन के रूप में हो। Since common practice, there are many common practice. तो इसमें बहुत सारे कॉमन प्रैक्टिस हैं, सामान्य दोनों में मिलते जुलते अभ्यास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। School, student, is it the essence? Is it don't harm other? तो इनका जो मूल के बारे में बात की जाए कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, दूसरों का अधिकारों का हनन न करो, दूसरों का लाभ करो, तो ये संस्कृत और पाली दोनों परंपरा में है। Sort of say the advice. तो आप दोनों से ही एक आप एडवाइस ले सकते हैं, हम लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। As I mentioned earlier, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जो विनय का अभ्यास है वो समान है। common. Okay. Okay, thank you, Your Holiness. So now we come to our last question for today. तो आज के लिए अंतिम प्रश्न, Brother Tan तो from ब्रजा Malaysia. तान जो कि मलेशिया से हैं। Brother Tan from Malaysia, please ask your question. तो Morning, Your Holiness. Kashi Dilek. तो परम पावन जी टच दिले, नमस्कार। How, my question is, तो अब मेरा प्रश्न है, to be एक अच्छा बौद्ध कैसे बन सकते हैं? thank you very much. I think Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam तो Sharanam बुद्ध Gacchami, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। not only just to repeat तो the इसको word, केवल दोहराना ही नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, इसको अगर आप with जानने some को, understanding, इसको अगर समझोगे Sharanam Gacchami, तो फिर आपके जो बुद्धं शरणं गच्छामि या तीन जो हमारी शरण हैं वो सच्ची शरण होंगे।
Buddhist. तो आप अच्छी तरह से एक अच्छे बुद्ध बन जाएंगे, अच्छे बौद्ध बन जाएंगे। Then, more in detail, what is Buddha? What फिर is इसके Dharma? What बाद is जो Sangha? बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, More इसको detailed और गहराई से अगर आप जानोगे तो एक अच्छे बौद्ध होगे। explanation you need. तो इसको समझने के लिए आपको और अध्ययन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। Thank you, Your Holiness. So this would conclude our Q&A session for today. तो आज And क्वेश्चन thank आंसर you, का Your जो सत्र यहाँ Holiness, for समापन giving करेंगे। us the inaugural speech for तो आज our आपने main इनॉग्रेल conference that is जो held स्पीच दिया today उसके लिए on बहुत बहुत Buddhism and धन्यवाद। Siksha. This is the conference that comes together with the Buddhists from both traditions. तो आज की जो संगोष्ठी, इसमें पाली और परंपरा दोनों परंपरा के लोग जुड़े हुए हैं। Uniting the Sangha of different traditions. तो विभिन्न परंपराओं को जो अलग अलग परंपराओं से लोग जुड़ रहे हैं, तो हम सभी लोग आपके जीवन की दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। And maybe wish that your wish for benefiting all beings would manifest. And this would conclude our inaugural session this morning, Your Holiness. Thank you तो so अभी much. आज के जो सुबह का सत्र है उसका हम समापन करने की तरफ हैं। तो मैं भी भगवान बुद्ध का एक शरणार्थी हूँ, एक शिष्य हूँ, भिक्षु हूँ। तो मुझे भी अध्ययन करके कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बचपन से मैं अध्ययन किया हूँ। तो मैं इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस हैं, सभा, इसका मैं बहुत ही अनुमोदन करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वार्षिक रूप से ऐसे डिस्कशन होते रहने चाहिए और बड़े लाभदायक होंगे। तो मैं भविष्य के बारे में देखता हूँ कि आगे कब मिलें, कब वार्ता हो। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Your Holiness. Our heartfelt appreciation and thanks for your presence today. तो आज आपने हम लोगों के समय बात रखे, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। With us online today are the monastic members and the public audience. तो आज जो भिक्षु और उपासक दोनों के लिए इसमें हम लोगों ने व्यवस्था की है, वो लोग भी सुन सकते हैं। इसमें पाली और संस्कृत परंपरा के जो विद्वान लोग हैं, तो दोपहर में जो टेक्निकल सेशन होगा उसमें पूरा मुलाकात होगी। तो केवल हिंदी